Good afternoon, all dignitaries, faculty members, and students. I extend my warm welcome to all for today's session. First of all, I would like to thank Mr. Chetan Loni on behalf of whole AGPIT family for accepting our invitation and gracing today's session. Before proceeding further, I just want to give brief introduction of Institution Innovation Council to today's speaker. Ministry of Education has established MOE's Innovation Cell to systematically foster the culture of innovation amongst all higher education institutions. The primary function of this MIC is to encourage, inspire, and nurture young students by supporting them to work with new ideas and transform them into prototypes while they are in formative years. The major focus of Institution Innovation Council is to create a vibrant local innovation ecosystem, startup supporting mechanism in higher education institution. Under this Institution Innovation Council, we are organizing number of functions such as innovation and entrepreneurship related activities. We are also identifying and rewarding innovations and share success stories with the students. We are organizing periodic workshops, seminars, interactions with the entrepreneurs, investors, professionals, and create a mentor pool for student innovators. We are also organizing hackathons, idea competitions, mini challenges for students. Now, our today's topic is important for budding entrepreneurs and for startup holders. That is product fit for market. It is the first step towards building a successful venture. It means in a good market with a product that can satisfy that market. Product fit for market is successful or it is based on three things: when the existing users recognize your product's value, when they tell others about their great experience with the product, and when your company replicates the excellent experience for the new users. This is likely every business end goal, to provide enough value to customers that they become your advocates and help you grow your customer base. Given this, every business or every entrepreneur or every startup holder should care about understanding and achieving what is the meaning of product market fit. Related to this, our today's speaker will guide us on the same topic. Before that, I will request Professor Ligade sir to give introduction of today's speaker. Ligade sir, Professor Ligade sir. Yes, thank you, madam. Welcome, Chetan Loni sir from AGPIT family. So I will introduce Loni sir in short because his overall experience take more than, for introducing it will take more than 15 minutes. So in short, I will introduce himself. So he is a professional practice on field more than 10 years, which is continuously going on. His experience as a trainer since 2012, which is continuously right now going on. So he is graduated from Olchar Institute of Technology, Solapur. He's completed construction management, PG course in construction management, Nikmar, Pune. He has also completed PG diploma in housing laws in ILS Law College, Pune. Currently, he is running private consultancy firm in Pune, and he is actively involved in construction project management, planning and monitoring, quantity survey and budget preparation, then project feasibility, cash flow analyst with reputed client of Pune like rural developers
Yogesh Enterprises, Rohan Constructions, Rama Group, SJCPL Pune. He has also worked as a senior engineer, planning manager, and project manager in organizations like Mahindra, Kumar Urban Limited, Javdekar Developers, etc. He has executed 12 plus residential, commercial, and industrial projects. He has trained 1500 plus students and professionals in Microsoft project, which is very popular software for project management, like versions 7, 10, 13, 16, and 19. He has given classroom hands-on training of MSP to large number of private as well as government sectors like Renew Power, Gurgaon, Advance India Private Limited, Delhi, SJ Contacts Private Limited, Pune, Price Waterhouse, Ahmedabad, Kumar Urban Limited, Pune, and government sectors like Military Engineering Services, Sukna West Bengal Road and Building Development Government of Gujarat, Gandhinagar, Public Works Department, Sasun Hospital, Pune, as well as Maharashtra Jivan Pradhikaran, Virar, Mumbai. He gives training on MS project to several engineering and management institutes across India. He is appreciated as lead trainer by Indian Army, Military Engineering Services, Road and Building Department, Government of Gujarat, Gandhinagar. So I welcome Chetan Loni sir. So thank you. I will hand over, continue this session by Chetan Loni sir. Thank you, sir. Thank you. Is my voice is clear to all of you? Yes, sir, but it is somewhat low. Just 1 minute. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So just for 2 minutes, I'll start my video Okay, sir. just to introduce. Is there someone who is going to join, or should we start? Yes, sir. You can start. So thank you, Maslekar madam. Thank you, Anil sir, for the introduction. So the topic you have given and the details that I have received related to today's topic, I'll just share my. Is the PPT is visible? Not now, sir. Yes, sir. Now it is visible. Is it visible? Yes, sir. Okay. So good afternoon, friends. Related to this good and a very, I'll communicate with you in English and Hindi. I think it is comfortable to all of you. Okay. Okay. So see, building an innovation or product fit in the market. So this is somewhat, if you consider any of the startup or any of the ideas that you have come across in the last so many years, from if I consider a milestone called smartphone, right? So whenever you consider a milestone like a era or a situation or a days or a year wherein the entire system got changed or entire scenario got changed, right? So whatever we have right now experiencing in such kind of pandemic situation or such kind of challenging situation, everything come across on the technology. Everything that we are using or everything that we are interacting, we are taking so many advantages or disadvantage also out of technological aspects. Okay, so today we are focusing on the concept of innovation or product which is fit in the market. Okay, so I hope my voice is clear to all of you. आवाज आ रहा है मेरा सबको?
This is agenda. Will not go through. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Will not go through the agenda. I'll just try to tell you about the framework, how we are as a startup holder. You can. I'm not going to give any boring lecture or any described discussion. I'm not going to explain you here. What I'm trying to tell you is, because basically my background is civil engineering, and the crowd that I'm observing here is mixed type of engineering backgrounds. Some of you belong to mechanical, or some of you belong to civil or IT or electrical or electronics. So irrespective of your background, what we are doing or what we are experiencing right now is the challenge of competency. Again, I'll repeat, the challenge of competency. What is competency? It means whatever you are going to launch, or whatever you are going to uh, launch about the product or services in the market, the entrepreneur or the person who is going to introduce his services or product to the market thinks that he is going to do it for first time. But lot of time it takes. What happens is, अरे ये तो मैंने लॉन्च कर दिया, लेकिन ऐसे तो 10 प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, ये तो सर्विसेज ऑलरेडी कोई तो प्रोवाइड कर रहा है. So all such kind of problems, or all such kind of negativity we are observing day to day. But how to come across, or how to come out of it, that we are going to discuss in today's agenda. This topic that introduced to your entire fraternity is very good. Before we proceed, we need to understand the framework of the market. Okay, being student, you should understand the framework of the market. हर एक को यहाँ पे स्टार्टअप करना है, हर एक को खुद की कंपनी बनानी है, हर एक को यहाँ पे मार्केट में एंटर करके खुद का नाम बनाना है, हर एक को ऐसा लगता है कि मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस जो है वो यूनिक ही होना चाहिए. बट दैट डजंट मैटर, दैट इट इज अगर आप परसेंटेज, अभी मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, ज़्यादा नहीं है. 98% of the startups fails in first 1 year itself. 98%. If you imagine that everybody needs, now in your topic there is a word called innovation. Everybody needs innovation. Friends, my request to all of you, my humble request to all of you, is to first understand your existing engineering. Okay, what I'm trying to tell you, first understand your existing engineering. राइट, एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग. नाउ क्या होता है हर बार कि हम लोग कुछ तो नया करेंगे, इस चक्कर में जो है वो कोई नहीं करता, या जो कुछ हमको करना चाहिए वो कोई नहीं करता. राइट, हर एक सेक्टर का यही प्रॉब्लम है कि हम लोग प्रॉब्लम्स ढूंढने की जगह, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढने की जगह हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे बात करते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इनोवेशन होता क्या है, या फिर ये स्टार्टअप में अलग अलग पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्यों हम लोग फेल होते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ आवर प्रेडिक्शन रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज. ओके, सो in broad manner, if I divide this framework of entire market or sector, you can call it as a sector or market, in two different way or two different part, is organized sector. Now those who are from manufacturing or in your college, if I consider those who are from IT background or electronics background, they fall into this organized sector. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, एक जनरल अगर मैं बात करूं तो चार दीवारों के अंदर, अंडर वन रूफ, यू आर डिलीवरिंग, यू आर क्रिएटिंग सम सर्विसेज. अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो दे आर वर्किंग फॉर सर्विसेज. मतलब क्या, कुछ आईटी, कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, कुछ कोर्स बना रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. राइट, ये सब सर्विसेज में आता है. यहाँ पे मैकेनिकल सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा सेटअप उनका रेडी है. राइट, जिसे आप कहते हो असेंबली लाइन. ठीक है, असेंबली लाइन पे ये लोग, एंड दीज आर नॉट लेबर्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर स्किल्ड वर्कर्स और स्किल्ड स्टाफ. यू कैन कंसिडर देम एज अ स्किल्ड स्टाफ. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कोई ट्रेंड वर्कर जो है या स्किल्ड वर्कर जो है कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो. तो दीज ऑल कम्स अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू योर डिफरेंट एरा और डिफरेंट सेक्टर ऑफ वर्किंग. दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे यू विल फाइंड less educated people, illiterate people, the people who don't know about the organization, they don't know about their balance sheet, क्या प्रॉफिट होता है, क्या उनको क्या होता है कि आज का दिन बस निकल जाए, आज
कमा लिया, आज खा लिया, कल का कल देखेंगे, राइट? So this kind of people or this kind of sector is unorganized because you'll find lot of uneducated people are working out there. Uneducated, they don't know about the अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, उसको कुछ अभी those who are from civil background, they don't know why these links are provided, why these spacing are provided. They just know that हमको करना है, ये हमको साहब ने बोला ये करना है, राइट? ऐसे काफी सारे सेक्टर्स आप देखते हो, आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हो, जैसे ये है, सब्जी मार्केट में जाते हो, देखते हो वहां पे एक कोई वो बंदा मार्केट यार्ड से कुछ खरीद के लेके आता है और एक रीजनेबल प्रॉफिट लेके वो आपको कुछ सब्जियां बेच रहा है, राइट? ऐसे ही आप रिक्शा लेते हो या फिर आप कोई सामान खरीदते हो या फिर कोई छोटा मोटा आप मटेरियल खरीदते हो, तो ये सारे जो सेक्टर्स होते हैं ये कोई लग्जरी या फिर ये बेसिक नीड्स के लिए होते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट इन टू डिफरेंट वे, नीड्स एंड वांट्स, ठीक है? तो जैसे हम कहते हैं, हमारे मराठी या हिंदी में कहते हैं अन्न वस्त्र निवारा, मतलब क्या है, रोटी कपड़ा और मकान जिसे कहते हैं, ये बेसिक इसमें आता है. अगर वो नहीं होता है तो आपको आगे काफी दिक्कतें आ सकती है, ठीक है? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और सेक्टर में ये सारी चीजें होती है. तो अभी हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, what is my problem statement, why I am looking at this perspective, why I'm entire sector is working for one single statement that is called as problem statement. तो यहाँ पे प्रॉब्लम जब हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम के बारे में बात करने से अच्छा है कि इसके स्टेटमेंट के बारे में बात कीजिए, ठीक है? We always find the problems, we are not interested to find opportunity in the problem, ठीक है? तो आपका अभी मैंने काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखा है, स्टूडेंट्स काफी अच्छे टॉपिक पे प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन नोबडी, अभी उसमें भी क्या होता है, जो सालों से चलता आ रहा है कन्वेंशनल, वही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट ढूंढते हैं, फिर कहाँ से, तो गूगल से डाउनलोड करते हैं, ठीक है? राइट नाउ फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, नोबडी वांट्स टू चेक आउट योर 200 पेज. किसी को टाइम नहीं है 200 पेजेस पढ़ने का. नोबडी. आपका अगर प्रोजेक्ट 30 पेजेस का भी होता है तो आई विल अप्रिशिएट, और द सेक्टर और इंडस्ट्री विल अप्रिशिएट, प्रोवाइडेड दिस 20 पेजेस आर practical and this will solve your problem statement, ठीक है? क्या हो सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? अभी फॉर एग्जांपल है, मैंने जो आपको 2 एग्जांपल बताया, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है? तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अभी आप देख सकते हो पिछले 5-10 साल में सब लोगों को ऐप के बारे में पता है, एवरीबडी वर्किंग ऑन ऐप. अभी भी जो हम ये गूगल मीट वगैरह कर रहे हैं, ये क्या है? दिस ऑल रिलेटेड टू एप्लीकेशन, ठीक है? एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है ऐप, आपको पता है. तो ऐप इतने सारे आ चुके हैं मार्केट में, इतने सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, डाउनलोड से पैसा कमा रहे हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज this industry, whatever startups you are right now observing, they are connecting these two sectors, ठीक है? होटल इंडस्ट्री या छोटा सा एक आप ठेला ही पकड़ लो या ढाबा ही पकड़ लो, अनऑर्गेनाइज, इट वाज अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो इफ आई आस्क यू to give an example of connection between organized sector and unorganized sector, अभी देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ढाबा. What is this? This is unorganized sector. And what is this? Zomato. What is this? This is organized sector. So the connection between these two factors becomes a huge success. पिछले 5 साल में आपने देखा होगा, the CEO or the director of this Zomato is not more than even 35 years. 35 के ऊपर का भी नहीं है. अगर आप विकिपीडिया या फिर गूगल पे जाके दे सकते हो. टेक एग्जांपल ऑफ ओला, टेक एग्जांपल ऑफ दिस उबेर और ओला कैब्स, और n number of examples are there. They are connecting this unorganized sector with this organized sector. Okay, so किसी ढाबे पे कुछ फेमस डिश मिलता है तो जोमेटो वाले ने क्या किया, जस्ट सिंगल क्लिक पे बुक करो, आपको डिलीवर किया. तो ये इकोसिस्टम कैसे बिल्ड किया होगा उन्होंने. एंड टू बिल्ड दिस इकोसिस्टम यू इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बिलोंग टू IIT और IIM. ओके, मैं ऐसा नहीं कहूंगा भी आप भी कल एक रात में कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है. उनके हार्डवर्क है, उनके उतने सारे रिसर्च है, उसके पीछे उतने सारे कनेक्शंस है, ये सारे उन्होंने हार्डवर्क करके वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले बनाए. तो इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ दिस जोमेटो कंपनी? अगर मैं बात करता हूँ, टू डिलीवर
food on time, every time. Now please check out this, what I have written. To deliver the food on time, every time. हर बार टाइम पे पहुंचाना उनका काम है, ठीक है। तो ये उनका प्रॉब्लम था, लोगों को टाइम पे खाना चाहिए, तो उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढ लिया और उसके ऊपर ये स्टेटमेंट बना लिया। तो आप जिस सेक्टर से भी आप बिलोंग करते हो, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसके लिए एक इंग्लिश में WH क्वेश्चन होता है, राइट। WH क्वेश्चन सबको पता है, वाई, हु, व्हाट, वेयर, हाउ। यहाँ तो मैंने 4 ही लिखा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हो तो आप क्यों करना चाहते हो। अगर सबको स्टार्टअप करना है, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट को आप पूछते हैं आपको स्टार्टअप करना है, तो 10 में से 9 लोग तो ना नहीं बोलेंगे, हाँ हमको करना है। लेकिन वो करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, उस सेक्टर के बारे में पता है। हैव यू गॉन थ्रू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हैव यू फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम 1-2 दिन फेस करके नहीं चलता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो और आपने एक पूरा स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, राइट फ्रॉम योर एक्सकेवेशन से लेके एंड तक, तो आपको प्रॉब्लम क्या होते हैं अलग अलग स्टेजेस पे वो पता नहीं होंगे। और डे 1 पे आप बोल दो कि मुझे बड़ा बिल्डर बनना है या मुझे एक बड़ा डेवलपर बनना है, तो काफी सारी दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। सो we were discussing about the problem, because problems are the key of your success. Until and unless you don't study these two, who has the problem. अभी जोमेटो का एग्जांपल बताया, यहाँ पे मैं देखता हूँ hungry people or hungry person has the problem. What he want food, ठीक है। Where, delivered at his location, ठीक है, जिसे आप लोकेशन का सिंबल देते हो। Why? Because I want profit, right, and he want food, ठीक है। तो ये इट्स मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट इज बिजनेस? इट्स अ कंसेप्ट ऑफ रीचिंग डिमांड एंड सप्लाई लिंक बाय शेयरिंग द रीजनेबल प्रॉफिट, ओके। ऐसे कुछ भी नहीं है कि 10 रुपए का आप आइटम है और आप उसको 100 रुपए में बेच रहे हो, ज्यादा दिन नहीं चलेगा वो, ठीक है। तो ये WH क्वेश्चन जो है, क्यों करना चाहते हो, किसी और का देख के या किसी कुछ तो मोटिवेशन यूट्यूब पे देख लिया कोई कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टडी करना है, इन डेप्थ जाना है। अगर आपको करना ही है स्टार्टअप, तो उसमें कस्टमर्स कौन से हैं, क्या आपके जो क्लाइंट्स कहो, कस्टमर्स कहो, आपके जो जैसे आपने मैम ने अभी कहा कि जस्ट वन सेकेंड, या जैसे अभी मैम ने कहा कि जो आपके एंड यूजर्स जो हैं उनको सेटिस्फाइड लेवल पे आप सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करोगे। तो ये सारे जो चीजें हैं ये आपको डिटरमाइन करने होते हैं, आपको टारगेट करने होते हैं। देखिए ये जो एक छोटा सा फोटो देख सकते हो, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये आप, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हिटिंग योर टारगेट्स। तो पहले एम डिसाइड करते हैं, फिर उसकी तरफ हम एरो जो है वो थ्रो करते हैं। एरो थ्रो करने के बाद अगर मैं कहूंगा अरे हाँ मेरा एम ये नहीं था ये था, तो उस स्टार्टअप का या फिर उस कंसेप्ट का कुछ मतलब नहीं बनता है। दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू नीड टू नो द कस्टमर। अभी मार्केट में बहुत सारे, नाउ टेक एग्जांपल दैट if I want to start a big multiplex in Solapur area in 2021 itself, I want to start it. Set करो customer target. You will not get 0 to 5 people in your 1 month, first month. अभी ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में अगर आप ऐसे स्टार्टअप करना चाहते हो तो nobody will respond you, ठीक है। तो बिजनेस वही करना है जिसमें खुद का नुकसान ना हो और यूजर एंड का भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विसेज इस तरीके से डिजाइन या इस तरीके से लॉन्च होना चाहिए जिसमें नुकसान जो है वो ना यूजर का हो ना आपका जो इंटरप्रेनर है उसका हो, ठीक है। ओके, तो बैंक में सब लोगों ने खाता खोला है, KYC फॉर्म सबको पता है। व्हाट इज KYC? इट्स अ नो योर कस्टमर्स, ठीक है। तो कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, इसमें 3 या 4 टाइप आप देख सकते हो उसको। एनालिटिक्स, नाउ ये कोई भी है, एक में अभी मैं सिंस आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, अभी एनालिटिक्स करना मुझे काफ़ी ज़रूरी होता है। समझो डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक मतलब क्या है, अभी आपका कॉलेज है, आई थिंक बीजापुर रोड पे आपका कॉलेज है, राइट। तो वो डेमोग्राफी है मेरा,
मुझे एक प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, दिस इज योर बीजापुर रोड हाईवे, ठीक है, एंड यू आर, आई एम नॉट सेइंग फुल्ली बट स्लाइटली यू आर आउट ऑफ आउटस्कर्ट में आपका ये कॉलेज है। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा कमर्शियल मॉल लॉन्च करना चाहता हूँ, सो इज इट एनालिटिकली, इज इट फिजिबल फॉर मी? इसका आंसर मुझे ढूंढना है। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए करना होता है मार्केट रिसर्च, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, ये आप आपके फील्ड में भी जो भी आईटी या आपको भी रिलेटेड है, आपको करना होता है मार्केट रिसर्च, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च में आपको समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट में वहां पे लॉन्च करना चाहिए, ठीक है, हु दे आर, मतलब क्या है, वो कस्टमर कौन है जहां पे मैं ये करना चाहता हूँ, उनमें सच में उतना, अभी फॉर एग्जांपल एक जैसे हम कैटेगरी करते हैं कस्टमर को, ठीक है, जिसे कहते हैं HIG, MIG या LIG, ठीक है, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप। कोई भी बड़ी सिटी में या फिर इवन सोलापुर में भी, या फिर जो भी मेट्रो सिटीज जो आप देख सकते हो, जहाँ पे हाई इनकम ग्रुप का आपको क्राउड दिखेगा, वहां पे सबसे ज्यादा आपको रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, जो भी लग्जरी आइटम्स है, आपको सबसे ज्यादा क्राउड वहां पे दिखेगा। ये कॉमन सेंस है, राइट। मिडिल इनकम ग्रुप है तो आपको क्या दिखेगा वहां पे? ज्यादा से ज्यादा डी मार्ट दिखेगा, रिलायंस मार्ट दिखेगा, या फिर आपके जो छोटे मोटे जो जिसे हम लोग लेजर टाइम के लिए स्पॉट्स कहते हैं, ऐसे कुछ लेजर टाइम के लिए उन्होंने बनाया रहेगा। तो ऐसा लो इनकम ग्रुप में क्या दिखाई देगा आपको? जो रोजमर्रा की चीजें होती है वो सब आपको LIG में दिखाई देगा। तो देयर पोटेंशियल, मतलब जो कस्टमर आपको कल को एक ऐप बना के अगर आपको बेचना है, तो जो जो आपके एक्सपेक्टेड कस्टमर है, उनके सच में उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी है क्या, ठीक है, स्पेंडिंग कैपेसिटी है क्या। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ पे है वो लोकेशन। अगर आप बैठे हो सोलापुर में और कहाँ पे आपको दूसरे स्टेट में अगर आपको प्रोडक्ट या फिर आपका सर्विसेज बेचना है, तो आपको टैक्सेशन के बारे में पता होने चाहिए, इंटरस्टेट के जो रूल्स है, इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट के जो रूल्स है वो उनके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए वेयर दे आर, लोकेशन डेटा आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको स्टडी करनी होती है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी स्टार्टअप बनाने से पहले। इसलिए इसको नाम दिया है कस्टमर का DNA पहचानो पहले क्या है, राइट। ओके, नाउ ये तो कस्टमर के डेमोग्राफिक या फिर सोशल या फिर पर्सनल नीड्स के बारे में मैंने बताया। अभी उसके जो नीड्स हैं एक्चुअली वो चाहता क्या है, मतलब जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है वो एग्जैक्टली चाहता क्या है, ठीक है। तो इसको आप एक IDCC टेबल नाम दे सकते हो, जिसमें आप आइडेंटिफाई करो कि क्या कस्टमर, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा थ्योरी नहीं बात करूंगा मैं, जस्ट आपको बताऊंगा कि देखिए आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करना है? वो ग्रुप में खरीदेगा, सोशल लिसनिंग जैसे फेसबुक पे देखेगा, या फिर माउथ पब्लिसिटी पे जाएगा और आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदेगा, ठीक है। ये मैं सबसे एंड के स्लाइड में मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट है, देखिए प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में ज्यादा यू नो ये नहीं है, मतलब आजकल के इसमें अभी का जो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन या फिर कोई भी ईबे, किसी का भी इकोसिस्टम देखते हो तो इट्स वेरी फॉरवर्ड एंड वेरी एडवांस्ड, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ई कार्ट है, डायरेक्टली आपको डिलीवर कर देते हैं ऑन टाइम, विद इन टाइम, ठीक है, ई कार्ट है। लेकिन जब सर्विसेज की बात आती है, सर्विसेज मतलब क्या है? आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है, राइट। आपको जो आपके जो टैलेंट है वो टैलेंट एक्वायर करके आपको कुछ तो सोल्यूशन देना है लोगों को। फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर में आपका खुद का एक ऑफिस है जिसमें आप खुद काम करते हो और आपके अंडर कुछ हायरार्की है, कुछ 3-4 लोगों को हायरार्की है। हर एक से आप सॉफ्टवेयर या फिर जो भी आपका कोडिंग बना के आप खुद चेक करके आपको जो सर्विस है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग। सो डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं सप्लाई चेन, ठीक है, सप्लाई चेन, या दूसरा आप सप्लाई चेन एक है, या लॉजिस्टिक भी कह सकते हैं। ये दोनों अलग अलग है वैसे कंसेप्ट, लेकिन सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। बनाया है, बेचोगे कैसे, राइट। बनाया तो है, काफी अच्छा बना है, लेकिन कौन आपके यहाँ पे, आपके दरवाजे पे कोई नहीं आएगा, आपको कस्टमर के यहाँ पे जाना पड़ेगा।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट योर सर्विसेज और प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो कस्टमर नीड जो है, क्रिएट अ कंटेंट दैट स्पीक्स टू योर कस्टमर नीड्स। मतलब क्या है, आपका नीड जो है, आपका कंटेंट जो है, वो आपका कस्टमर का नीड जो है वो इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए। अगर मुझे एप्पल चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रूट नॉट अ प्रोडक्ट, मोबाइल आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। अगर मुझे एप्पल चाहिए तो मुझे एप्पल ही चाहिए, राइट। तो अगर एप्पल बेचने वाले को आप जाके बोलोगे कि संतरा ले लो, इसमें काफी विटामिन होता है, कोरोना में अच्छा है, कस्टमर आपका सुनेगा नहीं, वो बोल रहा है मैं एप्पल मांग रहा हूँ, मुझे एप्पल ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारा इकोसिस्टम आपको समझना पड़ेगा जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है जो ये मैं कंटेंट आपने जो मुझे दिया है कॉलेज की तरफ से जो मिला है, उस बेसिस पे मैंने थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की है। वैल्यू प्रोपोजिशन, देखिए आज सर्विसेज या प्रोडक्ट में जो आपके एग्रीमेंट में लिखा है, आप जो दे रहे हो, एग्रीमेंट मतलब क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, या आपका इनवॉइस है, राइट, या आपका वर्क ऑर्डर है, अलग अलग नाम है, ठीक है। जो लिखा है वो तो आपको देना ही है, राइट। अगर आपको देखिए कोई भी आप ओपन करके देख लीजिए एप्लीकेशन जिसमें आपको कुछ ना कुछ ऑफर देने की कोशिश करता है हर एक प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, इट्स अ वैल्यू क्रिएशन सिस्टम। मतलब क्या है, वो वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करता है आपके साथ। क्यों कर रहा है, क्योंकि आप उनके साथ लाइफ टाइम जुड़े रहो, राइट। बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो Xiaomi मोबाइल या MI का मोबाइल आप बोल सकते हो। 2016 में आया हुआ मोबाइल जिसने पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा के रखी थी सिर्फ प्रोडक्ट फील्ड में। तो उन्होंने क्या वैल्यू प्रोपोजिशन किया था, दे हैव नॉट स्पेंट वन सिंगल रुपी ऑन एनी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। फिर भी वो नंबर वन थे, अभी भी नंबर वन है। तो इसमें बताने की कोशिश, या आप हर एक फील्ड में आप देख सकते हो वैल्यू प्रोपोजिशन में। इसमें कहने का मतलब ये है, बिजनेस और मार्केटिंग स्टेटमेंट ये होना चाहिए, ठीक है, सिंपल और क्लियर। आप आपके कॉलेज के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो आपका विजन स्टेटमेंट क्या है, आपका जो मतलब जिसे कहते हैं ना विजन स्टेटमेंट है, या फिर आपका गोल है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपके माइलस्टोन्स क्या है। जैसे एक कॉलेज का विजन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड प्लेस्ड इन रेप्यूटेड कंपनीज विद गुड पैकेज एंड ऑल। सो एक बिजनेस या एक स्टार्टअप का क्या वैल्यू प्रोपोजिशन या वैल्यू स्टेटमेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इट्स अ बिजनेस और मार्केटिंग स्टेटमेंट दैट अ कंपनी यूजेस टू समराइज, ठीक है, व्हाई अ कंज्यूमर शुड बाय। क्यों, अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मैं आपके पास आता हूँ और आप एक प्रोडक्ट में काफी आपने रिसर्च किया है, आप मुझे क्यों बेचना चाहोगे, या फिर आप मुझे कन्विंस करो कि क्यों आपका प्रोडक्ट ही बेस्ट है, क्यों मैं दूसरे कॉम्पिटिटर के पास ना जाऊं, क्यों मैं आपका ही प्रोडक्ट लूं या आपका ही सर्विस लूं, ठीक है। तो ये आपको मुझे कन्विंस करना है। तो इट्स ऑल अबाउट कन्विंसिंग योर कस्टमर विथ प्रॉपर एंड एथिकल वे। एथिकल वे के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ले लो जो 100 रुपए का है 20 रुपए में ले लो, आगे का आगे। इट्स नॉट अबाउट द कन्विंसिंग इन रॉन्ग वे, इट्स अबाउट कन्विंसिंग इन एथिकल वे, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यू प्रोपोजिशन सेंटर फोकस्ड है, ठीक है। देखिए इसमें बॉटम आप थोड़ा यहाँ पे देखते हो तो काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर है ये। यहाँ पे आपका कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो बॉटम में रखा है, ठीक है, और सबसे ऊपर क्या रखा है, कस्टमर को रखा है। देखिए सबसे ऊपर जो है वो कस्टमर को रखा है, ठीक है। मतलब आपके की पार्टनर्स कौन है, की एक्टिविटीज आप क्या करने वाले हो, आपके जो एक्टिविटीज और रिसोर्सेज जो है, जो आप स्पेंड करके जो एक प्रोडक्ट बनाओगे, उसकी वजह से आपका कस्टमर रिलेशनशिप बनने वाला है, उसके वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के सेगमेंट बनने वाले हैं, चैनल्स बनने वाले हैं, मतलब रेफरेंसेस बनने वाले हैं। और ये एजीपीपी के स्टूडेंट्स काफी शार्प है, आप इस पे मत जाओ कि वो सोलापुर में है, उसके स्टूडेंट्स काफी ब्राइट है, वहाँ के स्टूडेंट्स को आप डेफिनेटली रिक्रूट करो, आग बंद करके रिक्रूट करो। इतना अगर कोई ये कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो 100% से ऊपर बिल्ड किया है, ये आपका वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। तो वैल्यू एक साल में एक दिन में नहीं बनता है, इसको काफी साल लगते हैं। जैसे देखिए सारे मोबाइल से एक तरफ, एप्पल का एक मोबाइल एक तरफ, मतलब उसका वैल्यू प्रोपोजिशन के आसपास भी कोई नहीं आ सकता, मतलब ये उनका बिल्ट मतलब बिल्ट इन सिस्टम या फिर वैल्यू क्रिएशन जो जिसे कहते हैं ना, तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हो वहां पे। ओके, नाउ ये तो सब ठीक है, मुझे तो दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट देना है, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे आपको देना है, आपको डिलीवर करना है, ऑन टाइम करना है,
लेकिन भैया उसके लिए क्या लगता है, क्वालिटी के लिए क्वालिटी डिलीवर करने वाले लोग लगते हैं, मतलब स्टाफ लगता है। अभी ये इतनी देर तक हमने सिर्फ कस्टमर के बारे में सुना, कस्टमर के बारे में बताया, बात किया। व्हाट अबाउट अस? हम तो सोशल वर्क करने के लिए बैठे नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है। वट एवर प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू डिलीवर, वट एवर सर्विसेज आई एम गोइंग टू डिलीवर, हाउ शुड आई मेक इट वायबल? मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा, हम लोग यहाँ पे सोशल वर्क के लिए नहीं बैठे हैं। हमको क्या करना है, विद इन अ क्वालिटी पैरामीटर्स, विद इन अ कॉस्ट एंड विद इन अ टाइम मुझे वो प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर करना है। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यू शुड बिकम फर्स्ट बेस्ट इंजीनियर, ठीक है। पहले तो आपको अच्छा इंजीनियर बनना ही पड़ेगा। कोई, देखिए, नो शॉर्टकट्स, ये मुझे इंटरेस्ट नहीं है, काफी बोरिंग है, वो बोरिंग है, वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। वो सब्जेक्ट का या कॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई मेथोडोलॉजी आपको बोर लगता है, बाद में जाके उसी में आपको बिजनेस करना है, या फिर उसी में आपको जाके जॉब करना है, या फिर उसी जॉब में आपको आगे बढ़ना है, पता नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों को अभी इंजीनियरिंग में हमने देखा है, इंजीनियरिंग में उनको मैथ्स या ऐसे कैलकुलेटिव सब्जेक्ट को काफी, अभी वही लोग स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, अभी प्रेडिक्शन करना गलत है। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। यही सब्जेक्ट बेस्ट है, इसी में स्कोप है, और बाकी अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक सब्जेक्ट का खुद की वैल्यू होती है। तो कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप मार्केट में सेल आउट करना चाहते हो, उसका वायबिलिटी, मतलब देयर इज ईओक्यू कहते हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, परचेसिंग में हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। दूसरा होता है, जब आप बिजनेस करना चाहते हो, वो होता है बीईपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। देखिए, सबसे, अभी आप हमारे ग्रुप में कोई मारवाड़ी या फिर कोई जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो आई विल अप्रिशिएट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई एक प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट आप देखिए, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। एक ग्राफ में अगर मैं कुछ ये कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो है, ये मेरा एक्सपेंडिचर लाइन है, ठीक है। और ये एक्सपेंडिचर लाइन मैंने प्लान किया है पहले यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ समझो, एक 10 CR का मेरा पूरा प्रोजेक्ट की वैल्यू है। ये 10 करोड़ में मेरा बजट है, इसमें बन के रेडी होना चाहिए। और प्रोजेक्ट के 3 महीने बाद आप देखते हो कि आपका एक्सपेंडिचर यहाँ तक गया है। मतलब यहाँ पे आपको 2 करोड़ खर्चा करना चाहिए था, लेकिन आपने 3.2 CR खर्चा इस स्टेज पे किया है। तो ये बनाने में ही आपका बजट इतना ज़्यादा जा रहा है। इसलिए प्रोडक्ट को समझना, प्रोडक्ट का ये सब जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जानबूझ के लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए कि पेपर वर्क की वैल्यू क्या होती है। पेपर वर्क आप अगर नहीं करते हो, अगर आप शॉर्ट एनालिसिस नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आगे जाके आप फेल हो सकते हो, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट एनालिसिस? आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, उसका स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ मतलब, एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं तो, स्ट्रेंथ है, समझो एक प्रोडक्ट या एक सर्विसेज आपने लॉन्च कर दिया, वो दुनिया में वैसे कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, राइट। पार्ले जी का एग्जांपल ले लीजिए, उसको बीट करने वाले इतने सारे प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी लोग पार्ले जी ही खरीदते हैं, इसलिए वो दुनिया में नंबर 1 है। तो आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है उस प्रोजेक्ट का? अभी पार्ले जी का ही वीकनेस क्या है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अगर मैं पार्ले जी का ओनर हूं, तो मुझे 90% में सोशल वर्क कर रहा हूँ, 10% में प्रॉफिट कमा रहा हूँ, दैट्स ऑल। उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, आगे जाके क्या अपॉर्चुनिटीज है, अभी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट। अभी पार्ले का ही एग्जांपल ले लीजिए, पार्ले जी बिस्किट पार्ले जी की वजह से फेमस है, बिस्किट की वजह से फेमस है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट को बेच के उसने बाकी कितने तो सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स उसने मतलब बिल्ड किए हैं, जो अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं। उसके बाद आता है थ्रीट, मतलब उसका आपको प्रॉब्लम देने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, थ्रीट क्या है। तो ये सारे जो है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में करने से पहले, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज बिल्ड करने के बाद, एक फॉर एग्जांपल सर्विसेज का एक एप्लीकेशन आपने बना लिया, एप्लीकेशन बनाने के बाद शॉर्ट एनालिसिस मत कीजिए, या प्रोडक्ट बनाने के बाद शॉर्ट एनालिसिस मत कीजिए। शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, फिर प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, फिर प्रोडक्ट के बारे में आपके ग्रुप के साथ, आपके टीम के साथ चर्चा करके या फिर डिस्कशन करके उसको ये कीजिए, ठीक है। अभी देखिए, स्टार्टअप स्टार्टअप सब लोग स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, तो
वो इतना इजी क्यों नहीं है। कोई भी स्टार्टअप आपको बिल्ड करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप करने वाले हो, लैंड लगता है। अभी आजकल सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे के 100 साल आप वर्क फ्रॉम होम ही करोगे। इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम यू नीड लैंड, ठीक है। मतलब आपको वो तो करना ही है। आपको मटेरियल लगता है, अगर आप आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से हो या फिर कोई अलग सेक्टर से हो, आपका कंप्यूटर पेरिफेरल है। कोई मैकेनिकल सेक्टर में काम कर रहा है तो आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, कोई सिविल में काम कर रहा है तो उनके रॉ मटेरियल है, ठीक है। मैन पावर लगती है आपको, आपको इक्विपमेंट लगते हैं, टूल्स लगते हैं, टैकल्स लगते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पैसा लगता है। फ्री में कोई नहीं करने देगा आपको, कोई सोशल वर्क करने के लिए नहीं बैठा है यहाँ पे, ठीक है। इवन इफ यू कंसिडर योर फैमिली बिजनेस इट इज ऑल्सो नॉट अ फ्री, ओके। यू नीड टू पे हिम इन सम, यू नो, लव अफेक्शन एक लिमिट तक होता है, उसके बाद में आपको उसको रीपेमेंट करना होता है, राइट। तो ये सब मैनेज करने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत होती है, आपको टेक्निकल एज वेल एज मैनेजमेंट लेवल की नॉलेज की काफी जरूरत होती है। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होके भी फायदा नहीं है और सिर्फ मैनेजमेंट में बात करने से अच्छा होके भी फायदा नहीं है। दोनों भी साथ में हमको इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ओके। नेक्स्ट एक कंटेंट था आपका जो मैंने अभी पढ़ा था, प्रोटोटाइप, ओके। इसमें आई विल यूज द वर्ड कॉल्ड इमेजिनेशन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आजकल के एरा में। इफ यू डोंट, यू नो, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेलिंग। मतलब आप अगर प्लान नहीं कर सकते तो आप फेल होने का ही प्लान कर रहे हो, इन शॉर्ट, ठीक है। ये दो एग्जांपल आप देख सकते हो। ये जो ये पूरे प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसने विजुअलाइज कर लिया है ऑलरेडी कि मेरा स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। आप देख सकते हो इसका डिटेलिंग, रोड से लेके इसका ग्रास से लेके कौन सा पेड़ लगने वाला है, इससे लेके कौन से फ्लोर पे क्या आने वाला है, इसे हर एक चीज यहाँ पे डिटेलिंग में मौजूद है। वैसे आप यहाँ पे भी प्रोटोटाइप देख सकते हो, एक एप्लीकेशन है वो। ये रियल मोबाइल है क्या? कुछ नहीं है, ये सब कटिंग्स है, हाथ से इसने कटिंग बना के यहाँ पे दिया है कि ये मेरा एप्लीकेशन इस तरीके से दिखेगा, मेरा एप्लीकेशन इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इतनी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आप किसी को मतलब अगर कन्विंस करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा या सर्विसेज बनेगा। कंफ्यूज करोगे तो खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और सामने वाले को भी। मतलब अगर क्रिस्टल क्लियर अगर नहीं रहेगा कंसेप्ट तो इन्वेस्टर रहेंगे या फिर आपके यहाँ पे जो जॉब देने वाला या सैलरी देने वाला आपका ओनर रहेगा, अगर वो सेटिस्फाई या फिर वो कन्विंस नहीं होता है तो एंटायर वर्क और एंटायर योर एफर्ट विल गो इनटू वेन, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्रोटोटाइप किस तरीके से बनता है? एक, दिस इज कॉल्ड एज अ PDCA साइकिल। प्लान करो पहले क्या करना है। आपको सर्विसेज देनी है तो सर्विसेज में आपके डिलीवरेबल्स क्या होने चाहिए, मॉडल्स क्या होने चाहिए, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करके वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो। फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सेल यूज करने वाले हो या फिर कोई मार्केट में काफी सारे जैसे इंजीनियर्स है यहाँ पे, सिविल इंजीनियर्स है या मैकेनिकल, ऑटोकैड यूज करने वाले हो, क्या करने वाले हो आप। प्लान करो फिर उसको एग्जीक्यूट करो। ये मैं सिर्फ प्रोटोटाइप के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट या डायरेक्ट आपका बिजनेस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो आपका प्लानिंग इस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वेन एवर इट कम्स टू योर डू फैक्टर मतलब एग्जीक्यूट करना है। जो भी एग्जीक्यूट किया है, जो प्रोटोटाइप आपने बनाया है, राइट। जैसे यहाँ पे हमने ये प्रोटोटाइप बनाया है, ठीक है। इसमें चेक करो। तो एग्जाम्पल क्या है, अभी आपने एक एप्लीकेशन बना लिया है, चेक, काफी सारे चेक होते हैं, स्पेलिंग चेक करो, राइट। यहाँ पे समझो ये कैंटिलीवर स्लैब है इतना सारा, ये कैंटिलीवर स्लैब रियल में हम देने वाले हैं या नहीं देने वाले, इतना देने का खर्चा हम लोग उठा सकते हैं नहीं उठा सकते, ये सारी चीजें जो है ये आपको वहां पे कंक्लूड करनी होती है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट से लेके रियलिटी तक आने के लिए आपको PDCA साइकिल करना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। और एक्ट करना है। और ये प्लान डू चेक, चेक मतलब क्या है? प्लान में सिर्फ क्या है, सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। इसमें काफी सारी नॉन टेक्निकल चीजें भी आती है, कमर्शियल चीजें आती है, इसका मार्केटिंग है, ठीक है। इसके CRM है, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपने एक प्रोडक्ट बेच दिया तो खत्म हो गया क्या आपका? सर्विस सेंटर सबको पता है, एक मोबाइल अगर लेते हो कुछ होता है तो आप पहले सर्विस सेंटर का नंबर ढूंढते हो, तो वो कौन करेगा? उसके आफ्टर सेल सर्विस जिसे कहते हैं, आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। तो टेक्निकल
में सिर्फ स्ट्रांग रहने से कुछ फायदा नहीं है। जब आप स्टार्टअप के बारे में बात करते हो, आपको ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो और ये सब करते समय ये एक इम्पोर्टेंट मुझे सिर्फ आपको बताना है, आपका टाइम और आपका जो कॉस्ट है वो आपको बैलेंस करना है, ठीक है। देखिए, अगर आप कोई एक कंपनी या फिर कोई सर्विसेज रन कर रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली आपको फंडिंग लगता है। क्या लगता है? फंडिंग लगता है। कौन करेगा फंडिंग? अगर मेरा फैमिली बिजनेस काफी स्ट्रांग है, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, वो भी कुछ लिमिटेशन तक होता है। आप फंडिंग करते जा रहे हो और कुछ वहां से रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो उस दैट इज लॉस मेकिंग बिजनेस, ओके। तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। जैसे है आपका पैट है, मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सब टैक्स वगैरह जाके आपको, सब एक्सपेंडिचर जाके आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, राइट। जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जीएसटी किस तरीके से अप्लाई होता है, सीजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, राइट, यस जीएसटी क्या है। ये आपको टैक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए। लीगलिटी या फिर लाइजनिंग जिसे कहते हैं, ये मैं सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ। लीगल कोई भी बिजनेस है वो आपको लीगल ही होना चाहिए। आप पास आउट होने के बाद एक आपका फ्रेंड कम हो गया तो चलेगा, या फिर एक नया फ्रेंड नहीं बना तो चलेगा, एक फ्रेंड आपका होना चाहिए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे ही आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका पास अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्यों जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है, ये आपका बिजनेस का डॉक्टर है। ये जो है, ये आपका बिजनेस का डॉक्टर, ये आपको गाइड करेगा कि आपको रिटर्न्स कैसे भरने हैं, कैसे आपको स्टार्टअप में जो भी आप लोन ले रहे हो या फिर जो भी आपको सैलरी आप पे कर रहे हो उसके ऊपर कैसे बेनिफिट लिया जाए, पार्टनरशिप फॉर्म करनी है या सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म करनी है, वॉट एवर यू वांट टू ग्रो इन द बिजनेस, सीए विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ वेरियस फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये सब मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? मैनेजमेंट का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। मैनेज मी मतलब क्या है? खुद को मैनेज करना है, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब आप क्या ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये जो आप सबको लगता है कि मुझे भी लग रहा है कि काफी बड़ा बिजनेस में स्टार्ट करूं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना है, हमें बहुत बड़ा स्टार्टअप खड़ा करना है, हमें उससे काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, लोगों को जॉब्स देने हैं, ये सब करना है। तो टीम वर्क जो होता है, पीपल एंड दैट टू जेन्यून एंड जो जिसे कहते हैं आप अजाइल पीपल, मतलब जिसे कहते हैं ना चपड़, जिसे करते हैं ना, तो अजाइल पीपल की जरूरत होती है। लास्ट में आता है टीम, ठीक है। तो सिर्फ मतलब टीम या मैनेजमेंट होने से, कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट और कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए। एरोगेंट बॉस या एरोगेंट अगर आपका मैनेजमेंट है और कोई सुनने वाला अगर आपका स्टाफ नहीं है तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा मैंने सिस्टम का ये चेंज कर दिया है यहाँ पे स्पेलिंग। आपके पास सिस्टम मतलब ये टीम होगी तो आपका आगे का सब वर्क अच्छा तरीके से चलेगा, ठीक है। तो एक लास्ट कंटेंट था आपके इसमें, अवेयरनेस अबाउट द स्टार्टअप एंड रिलेटेड इकोसिस्टम। देखिए जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था, इवन मैं खुद एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कुछ आईआईटीज ने आके काफी मतलब एक बहुत इंटरेक्टिव ऐप बनाया है जो कंस्ट्रक्शन में काफी पॉपुलर हो रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ आपके ही सेक्टर में ढूंढो ऐसा जरूरी नहीं है। अगेन आई रिपीट, अगर आप आईटी सेक्टर से हो तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आईटी सेक्टर में ही है ऐसा नहीं है। आप ट्राई करो कि कंस्ट्रक्शन में आप क्या कर सकते हो, या कंस्ट्रक्शन में जो लोग हैं वो ढूंढो कि मैं कुछ कोडिंग सीख सकता हूँ क्या, मैं मेरे जो डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे क्वांटिटी निकलना है, क्वालिटी के कुछ इश्यूज है, उसमें कुछ मैं कर सकता हूँ क्या। मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से उनके जो डे टू डे प्रोसेसेस में या असेंबली लाइन पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो 1 घंटे का काम 10 मिनट में हो सकता है, ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या। तो ये सारी जो चीजें हैं उसके लिए आजकल स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं, और उसके लिए काफी स्टार्टअप्स जो है वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। मतलब मैं सिर्फ निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, सक्सेसफुल भी हुए हैं। जैसे पावर बीआई का आप ऐप ये ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए। चलो उसको तो माइक्रोसॉफ्ट का बैकअप है इसलिए वो है, लेकिन पावर बीआई है, काफी सारे एप्लीकेशन है जिसमें ग्रो जो हो रहे हैं लोग
क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स है, जैसे ईआरपी के बारे में। ईआरपी एक काफी अच्छा अभी सभी सेक्टर में वो चल रहा है। व्हाट इज ईआरपी? ईआरपी इज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं, लोग उसमें ग्रो भी कर रहे हैं और सॉल्यूशन भी मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और एक आपको बता दूं कि पहले तो दिमाग से निकाल दो कि जो एजिज्म का, जो एजिज्म मतलब क्या है? अरे तू क्या करेगा, तू तो अभी अभी तो पास आउट हो चुका है, तुझे क्या आएगा? पहले एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, लेकिन ये आपके माइंडसेट से निकाल दो कि अरे मेरा तो अभी 20-22 का तो एज है, मैं क्या करूंगा, मुझे तो एक्सपीरियंस चाहिए। डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस लो, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स क्या चल रहा है वो भी देखो। मैं हर बार ये नहीं कहूंगा कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स, understand that, and then you can think what is outside the box. Okay, so abhi this is my my own startup, my one this is associate business, एक catalyst कंपनी है जिसमें हम लोग एस्टिमेशन और सारा वैल्यूएशन का काम करते हैं। मैं एक स्टार्टअप का मेरा खुद का एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, और एडवर्टाइज भी कर रहा हूँ मेरे खुद के प्रोडक्ट का। तो ओके, सेकेंड इज कॉनब्रेन। ये रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है कुछ 6 महीने पहले। कॉनब्रेन का मतलब होता है ब्रेन बिहाइंड कंस्ट्रक्शन। ओके, सो इसमें हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, अभी पीएमसी के अंडर सोलापुर में ही हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है सैफुल एरिया में। प्लानिंग मॉनिटरिंग की काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं पुणे में। क्वांटिटी सर्वे का काम हम करते हैं, ट्रेनिंग भी हम लेते हैं, ठीक है। ऑडिट्स होते हैं, अभी काफ़ी सारे बिलिंग या फिर कमर्शियल कॉस्टिंग के ऑडिट्स होते हैं। वैल्यूएशन होता है, जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट के या फिर प्रॉपर्टीज के, इमोवेबल प्रॉपर्टीज एक्ट के अंडर वैल्यूएशन करना होता है, तो हम लोग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज वैल्यूअर भी है। तो ये सारी सर्विसेज, सो वी आर इनटू सर्विसेज, वी आर नॉट creating any type of cement product or anything, we are service oriented consultant. Okay, so ये करने से पहले 2-3 साल का हमारा क्लैरिटी है, मतलब 2-3 साल का हमारा, जैसे अनिल सर को पता है हम लोग कब से ये कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेड मैनर में, ठीक है सर हम ये कर सकते हैं, अगर आपको हमारे सर्विसेज चाहिए तो ये हमारे कॉस्ट है, ये आपको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट today's session. So I'll stop here. If you have any question, feel free to ask. We'll finish or we'll discuss our question within 5 minutes, so that we'll conclude it. Yes, questions are welcome. If anybody want to ask question. Poddar sir. Yeah. If you have any question, you Yes. can ask me. Mr. Chetan, your presentation was wonderful. I have one question, not a question, but could you suggest for Solapur students, smart city related some innovative projects? If you could suggest some of the areas, they'll be benefited a lot. If you could Okay. just. See, smart city related projects, whatever we especially working in, like we have done one survey module for one of the smart city package in Pimpri area in Pune itself. So what we have done, we have given them entire cash flow and entire mapping of the activities. मतलब क्या है उसमें कि काफी सारे, जैसे अभी हम लोग स्मार्ट सिटी के अंडर यहाँ पे देख रहे हैं कि नाउ इन सोलापुर इट इज टाइम टेकिंग, बट यहाँ पे MNGL जो गैस पाइपलाइन जो होती है, now every building is coming up with the gas pipeline, online gas pipeline. So what they have done, they are already now it's a typical government model, unfortunately. रोड बना दिया, रोड के बाद उसका एक्सकेवेशन हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने पाइपलाइन डाल दिया और एंटायर न्यू वर्क गॉट डिस्टर्ब। तो ये चीजें ना हो इसलिए हमने उनको एक्टिविटी मॉनिटरिंग के लिए या फिर एक्टिविटी मैपिंग के लिए उनको WBS बना के दिया था कि आपका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। ये एक मॉडल हो सकता है प्लानिंग का। दूसरे जो आपके मॉडल्स है, जैसे आपके जो जैसे आप कहते हो ऑनलाइन मॉनिटरिंग, मतलब क्या है कि आपका स्मार्ट सिटी का पैकेज एक कोई जोन में अलॉट हो चुका है, समझो एक 100 CR का पैकेज अलॉट हो चुका है,
तो उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अभी सोलापुर का मैंने कुछ दिन पहले लिफलेट या पेपर कट्स मैंने पढ़े थे, जिसमें प्रोजेक्ट का टाइमलाइन 2019 इटसेल्फ था, अभी 2021 में हम लोग, राइट। तो वो मॉनिटरिंग, ऑटो मॉनिटरिंग पे कैसे लेके आ सकते हो, जिसके ऑटो अलर्ट्स आपके गवर्नमेंट अथॉरिटी को या फिर जो उसका कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी है उसको जा सकते हैं। ऐसे कुछ ऑटो मॉनिटरिंग पे लेके आ सकते हो तो वो भी काफी अच्छा रहेगा। जैसे इट्स अ रिमाइंडर काइंड ऑफ थिंग, मतलब रिमाइंडर आपके मोबाइल पे जैसे आपने बर्थडे का रिमाइंडर लगा के रखा है, वैसे ही आपको वहाँ पे मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो जाना चाहिए। तीसरा जो है आपका बजटिंग या फिर आपका जो कॉस्ट मॉनिटरिंग है वो भी आप वहाँ पे कर सकते हो। ऐसे अलग अलग रीजन, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। टेक्निकल में सिंस आई एम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बैकग्राउंड, तो वो रिलेटिवली मैं बता सकता हूँ। प्रोडक्ट में तो एन नंबर ऑफ, जैसे शॉर्टकट है या फिर जीपीएस, जीआईएस जीपीएस सिस्टम्स के काफी सारे, जैसे एक अभी कंपनी में है, मैंने एक कुछ डेमो देखा था जिसमें कंप्लीट जो आपका स्मार्ट सिटी के अंडर जो जैसे स्मार्ट सिटीज आउट ऑफ इंडिया भी है, the moment you finish the excavation, the GPS system or GIS system which inbuilt in that excavator machinery itself will give you the quantities कि इतना हो चुका है काम, और ये सॉइल का इतना बिलिंग भी हो सकता है। मतलब ये टाइप का भी अभी काम चल रहा है। अगर आपको यूट्यूब में जाके देखना है तो मैं लिंक भी अनिल सर को शेयर कर सकता हूँ, ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, इनोवेशन इन एक्सकेवेशन। Okay, okay. Right, sir. Thank you. थैंक यू। I think questions are over. Now I will request Professor Aditya ma'am to please give a vote of thanks. Thank you, sir. I express my sincere thanks to Chetan Loni, sir, for his valuable guidance. Definitely, sir, your guidance will be helpful for our budding entrepreneurs. I mention my thanks to Secretary of AGPIT, Shri S.A. Patil, sir, Campus Director, Shri M.A. Chavole, sir, Principal Dr. S.A. Patil, sir, and Vice Principal Dr. Poddar, sir, for giving us permission to organize this session. I would also like to mention my thanks to all faculties, students for attending this session. With the permission of authorities, I declare that today's session is over. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you once again. Thank you very much. Yes, sir.